أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو عید کی بڑی پرخلوص مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ پہلی ملاقات ہے عید کے بعد، تو اس لحاظ سے آج کی اس ملاقات میں ہم گزری ہوئی عید کا ذکر آپ سے کرتے ہیں، اور وہ خوشیاں جو آپ نے منائی، جو ایک شرعی حکم بھی ہے۔ عید کہتے ہی اسی کو ہیں کہ کچھ خوشی کے پل ہوتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر کے بار بار آتے ہیں، اور اس موقع پر تھوڑی سی خوشی منانا جائز بھی قرار دیا گیا ہے۔ تھوڑا اچھا کھانے پینے کا اہتمام کرنا جو خوشی کا منانے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت سیر و تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے جو سیر و تفریح کے سامان ہوتے تھے، تو اس طرح کی چیزیں عید کے موقع پر کی بھی گئی ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کی تھوڑی گنجائش رکھی بھی گئی ہے، اور یہ جائز حدود کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، تو اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عید کا موقع تھا، تو عید کے اس موقع پر آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں گئے، تو انصار کی کچھ بچیاں تھیں جو وہاں پر اشعار کو بڑی اچھی آواز میں ترنم کے ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ تو اچھی آواز میں، اور ترنم جسے کہتے ہیں نا، جو گانے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے بڑے ترنم سے وہ پڑھ رہی تھی۔ مطلب کوئی میوزک وغیرہ نہیں تھی، بس ایسے ہی ترنم سے پڑھ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اب خوشی کا موقع تھا، تو آپ نے کچھ کہا بھی نہیں ان کو۔ وہ خوشی منانے کا ایک انداز ہوتا ہے یہ بھی۔ تو آپ سیدھے بستر پہ گئے اور لیٹ گئے، جا کر گئے، چادر بھی اپنے اوپر ڈال لی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھوڑا بچیوں کے ساتھ وہ بھی کھیلتی رہی اس میں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ امزمار من مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کچھ اس طرح سے انہوں نے غصے میں بات کہی۔ یہ کیا ہے؟ ڈانٹنا شروع کر دیا لڑکیوں کو کہ یہ کیا کر رہی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے گانے۔ تو تھوڑا غصہ دکھایا اس پہ۔ اس کے بعد جب ان کو غصے میں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں تھے نیند سے، بس ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چھوڑو ان کو،
ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور یہ ہماری عید ہے۔ یعنی عید کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس میں جو ہے اجتماعی طور پر لوگ خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے۔ تو چھوڑو، تھوڑے بہت اشعار وغیرہ یہ پڑھ رہی ہیں، ان کو پڑھنے دو۔ اور وہ اشعار جو تھے اس زمانے میں، یعنی انصار کے قبیلے کی سب عورتیں تھیں اصل میں، اور لڑکیاں تھیں، یہ عورتیں بھی نہیں کہیں گے، لڑکیاں تھیں، یہ بچیاں تھیں۔ اور ایک جنگ گزری ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، مدینے میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اس کو جنگ بواس کہتے تھے۔ تو اسی جنگ بواس کے موقع پر جو اشعار کہے گئے تھے، وہی اشعار وہ پڑھ رہی تھی، اصل وہ جو گنگنا رہی تھی تو وہی اشعار وہ گنگنا رہی تھی، وہ پڑھ رہی تھی بڑے ترنم کے ساتھ۔ تو یہ کوئی عشق و عاشقی کی داستان نہیں تھی، کوئی ایسے اشعار بھی نہیں تھے جس سے جو جذبات عورتوں کے ہوتے ہیں یا مردوں کے ہوتے ہیں، جس سے ان کی شہوتیں ابھرتی ہوں، ایسے کوئی جو ہے اشعار نہیں تھے، اس طرح کی کوئی بےہودگی نہیں تھی ان کے اندر، بلکہ وہ جنگ میں کہے گئے اشعار جو بہادری پر ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ہے اشعار تھے۔ بہرحال وہ گنگنا رہی تھی، ترنم سے پڑھ رہی تھی، بات صرف اتنی ہوئی تھی اس میں۔ تو اس کی وجہ سے آ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے کہ کیسے جو ہے یہ اس طرح سے آواز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو ان کو، پڑھنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ایک تہوار ہوتا ہے، اجتماعی طور پر خوشی منانے کا ایک دن ہوتا ہے، اور یہ ہماری عید ہے۔ اور اس مناسبت سے اگر کچھ اس میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خوشیاں منانے دو ان بچیوں کو۔ یہ ایک چیز ہوئی تھی، وہ جو عید کا موقع تھا۔ دوسری ایک چیز اور ہوئی تھی، وہ حبشہ کے لوگ اپنے کرتب دکھاتے تھے، تو مسجد کے صحن میں وہ کرتب دکھایا کرتے تھے۔ یعنی ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، بس ایسے خوشی وغیرہ کے موقع پر ایک طرح کا کھیل ہوتا تھا، وہ بھی جو لوگ دیکھتے تھے۔ اور یہ کھیل اس طرح کا کھیل تھا جو آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ کہیں تو جنگی تیاری کے لیے، یعنی آ، دشمن سے لڑنے کے لیے جو فوج کی تیاری ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی بات تھی اس کے اندر، اس کھیل کے اندر۔ یہ جو آج کل لوگ کھیلتے ہیں اور پوری پبلک دیکھتی رہتی ہے، سب کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیسے بنائے جاتے ہیں، اور کھیل کود کو بھی ایک پروفیشن بنا دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے موٹی موٹی کمائی ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے سامنے فیل ہیں، اس طرح سے وہ سیلیبریٹیز کی جو ہے جو زمرے میں بھی ان کو شمار کر لیا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے ایڈورٹائز وغیرہ سے وہ لوگ اپنے پیسے بناتے ہیں، اور کھیل کر کے بھی پیسے بناتے ہیں بہرحال۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ کھیل نہیں تھا، وہ اصل وہ کھیل تھا، میں نے بتایا آپ کو، کہ جس میں جنگی تیاری ہوتی ہے، یعنی جو لڑنے کی فن ہوتے ہیں نا، ہنر ہوتے ہیں، کہ کیسے دشمن پر حملہ کرنا ہے، اور کس طرح سے دشمن حملہ کرے تو بچاؤ کرنا ہے، وہ بھی نیزے بھالے جو اس زمانے کے ہتھیار تھے، ویپن جو ہے اس زمانے کے، اسی کا استعمال کر کے وہ لوگ کھیلتے تھے۔ تو وہ دیکھنے کی چیز ہوتی تھی کہ کیسے سامنے والا بچتا ہے اور کیسے کوئی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر شوق بھی تھا نا، تو اس طرح کے کھیل دیکھنے کا شوق تھا، اور لوگ دکھاتے تھے کھیل، تو اس طرح کا کھیل دکھایا کرتے تھے۔ تو عیدی کا موقع تھا، عیدی کے موقع سے یہ بھی ہوا کہ یہ لوگ حبشہ کے لوگ تھے، اور ان کو اچھا تیر اور بھالا چلانا ان کو اچھا آتا تھا، تو وہ لوگ اپنے بھالوں کے ساتھ، جو یہ اس زمانے کا ایک ہتھیار تھا، کہ یہ ویپن جو ہے اتنا جان لینا کافی ہے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے،
तो मस्जिद के सहन में वो लोग यही खेल खेल रहे थे। तो ये आपस में जब मुकाबला करते हैं तो ये बस कैसे ये हमला करता है, वो कैसे बचता है, बस इसकी एक प्रैक्टिस होती है और कुछ नहीं रहता। उसमें वाकई माने में मारा नहीं जाता है किसी को। तो ये सिर्फ बिरादराना खेल होता है ये। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस मौके पर, उनको भी देखने की ख्वाहिश थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश का अंदाजा लगा लिया। हातिम, तो आपने जो है उनसे पूछा कि आप देखना चाहती हैं? कहा कि हाँ। तो आप अपने घर के ऊपर बैठ गए पर्दे के लिए, और आपने पीछे जो है अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बैठा लिया, या जो है कि वो इसको देख सके, देखने के लिए। और जब तक उनकी ख्वाहिश रही वो देखती रही। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बैठे रहे। अपनी बीवी का आपने इतना उनके जज्बात का ख्याल किया, क्योंकि वो थोड़ी छोटी उम्र की थी। तो उस उम्र में खेल कूद के थोड़े जज्बात भी ज्यादा होते हैं, एहसासात ज्यादा होते हैं, और ख्वाहिशें ज्यादा होती हैं उसकी। तो उस ख्वाहिश के लिहाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के उन जज्बात का बड़ा ख्याल किया और मौका दिया कि बैठ करके देखें। और जब तक उनकी ख्वाहिश थी आप बैठ करके उनको ये खेल दिखाते रहे। तो ये एक खुशी के मौके होते हैं। तो खुशी के मौके पर इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हो जाती है। और इसमें कोई इस्लामी शरीयत के लिहाज से कोई पाबंदी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आजकल की जो चीजें हैं उनको इसके ऊपर कयास नहीं कर सकते। ये उस जमाने के खेल कूद थे जो जंगी तैयारी से ताल्लुक रखते थे, और उस तरह की चीजें थी। आज के खेल जो एक तरह से वक्त को बर्बाद करने का एक जरिया है, और बच्चों को इसके जरिए से बर्बाद किया जाता है, पूरी कौम को बर्बाद किया जाता है। और इसीलिए जो कौमें कुछ बनना चाहती हैं वो इस तरह के खेल खेलती भी नहीं है। आप देखेंगे, तारीख देखेंगे, तो उन मुल्कों में ये खेल, या वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग इन सब चीजों से दिलचस्पी नहीं रखते हैं, और उनकी दिलचस्पी कुछ और होती है। वो अपने बच्चों को भी इधर नहीं दाखिल करते, और न इस सिलसिले में अपने बच्चों को कोई जो है इन चीजों की तरफ उनकी ख्वाहिश कुछ हो, तो वो भी जो है उनके यहाँ चीजें नहीं पाई जाती हैं। आप जब जायजा लेंगे ना तो हर एक के यहाँ आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी। बहरहाल ये एक था, थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे बात की है ये ईद की मुनासबत से। आपको आपका ये पहला दर्स था ईद के बाद। चूंकि एक लंबी छुट्टी के बाद हम फिर से मिले हैं ना, तो नए सिरे से फिर से मिजाज बनाने के लिए दर्स का भी अपना एक मूड होता है, असल एक मिजाज बनता है उसमें। तो उसी के बाद ही हमारे जहन से भी बातें निकलती हैं। ये याद रखिएगा कि ऐसे ही अचानक हम आए और कोई टेप रिकॉर्डर तो होता नहीं है कि टेप बजा दिया और चले गए, वैसा नहीं होता है ये। तो दिमाग से बातें निकालने के लिए हमको भी पहले मूड बनाना पड़ता है, उसके मिजाज में ढलना पड़ता है पूरे तरीके से। और जब वो पूरा माहौल बन जाता है तब जा करके दिमाग से बातें भी निकलती हैं। तो जब भी पहला दर्स होता है एक छुट्टी के बाद या लंबी छुट्टी के बाद, तो उस वक्त फिर से दिमाग और दिलो दिमाग को इसकी तरफ लाना होता है। और सुनने वालों का भी चूंकि एक मसला रहता है ना कि अब एक लंबी छुट्टी के बाद वो भी हाजिर हुए हैं, तो उनको भी एक पटरी पे लाना रहता है, फिर से अपने दर्स की तरफ उनकी तवज्जो लानी रहती है। तो पहले दर्स में हम थोड़ा इस तरह का कि जैसे आम संजीदा दर्स होता है, इल्मी दर्स, उससे हट करके थोड़ा हल्का फुल्का दर्स करते हैं। एक तमहीद के तौर पर चीज होती है, ज्यादा जहन पर उसमें जोर नहीं डालना पड़ता है, और एक मिजाज बन जाता है। फिर हम अपनी असल की तरफ लौट आते हैं। कभी आपने देखा होगा कि मैदान के अंदर खिलाड़ी उतरने से पहले हल्की हल्की थोड़ी अपने जिस्म को गर्म करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, हल्का हल्का। फिर मैदान में उतरते हैं। अचानक जो है
बिल्कुल जिस्म को अभी गर्म ना हुआ हो और बहुत ज़्यादा आप उसको झोंक देंगे और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डाल देंगे तो उससे सेहत पे असर पड़ सकता है। तो वो भी इस बात का ख़्याल करते हैं। तो थोड़ा हल्का-फुल्का पहले जिस्म को गर्म करने के लिए कुछ किया जाता है और फिर अपनी असल चीज़ की तरफ आया जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ा रहा है। आपकी जो रात की नमाज़ें होती थीं, तो क़याम लैल जब बहुत लंबा आप क़याम लैल करते थे, तो एक-एक रकात में पूरी सूरह बकरा भी आपने पढ़ी है, इतना लंबा क़याम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सूरह बकरा पूरे ढाई पारे में है और उतनी जो है एक रकात के अंदर पूरी सूरह बकरा पढ़ जाना, तो लंबी-लंबी सूरतें भी आप एक रकात में पढ़ जाया करते थे, ऐसा भी हो जाता था, इतना लंबा क़याम करते थे। तो उठते ही बिस्तर से सो कर के उठे और बस वज़ू किया और वज़ू करते ही आप इस तरह से लंबी शुरुआत करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपका भी तरीका ये था कि 2 रकात पहले हल्की पढ़ते थे और वो असल क़ियाम लैल में शुमार नहीं होता था। जब ये कहती हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि आप रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, 11 रकात से ज़्यादा आप क़ियाम लैल नहीं करते थे, तो उस 11 रकात में ये 2 रकात शामिल नहीं थी। क्योंकि वो ये समझती थी कि ये असल क़ियाम लैल नहीं, ये सिर्फ़ जिस्म को थोड़ा गर्म करने के लिए, लंबे क़ियाम की तैयारी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 रकात पढ़ते हैं, उनका भी यही ख़्याल था। तो इसीलिए बाज़ रिवायतों में 13 रकात का ज़िक्र आता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से है और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी एक रिवायत इस तरह की है। तो इसमें तत्बीक की शक्ल यही होती है कि इन रिवायतों को जमा करने की कि जिनमें 13 रकात का ज़िक्र आया है ना, उसको 2 रकात शुरू की, वो 2 रकात थी जो आप अपने जिस्म को गर्म करने के लिए पहले पढ़ते थे। उसके बाद फिर लंबे क़ियाम की आपकी शुरुआत होती थी। तो एक तरीक़ा है ये और इसी तरीक़े पर चलना पड़ता है। तो अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि फिर हम और आप ईद की जो है कह लीजिए कि खुशियों के बाद उसके पहले रमज़ान की एक लंबी छुट्टी के बाद हम फिर से हाज़िर हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ हैं। आपका हमारा ये साथ तो बरसों का है और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। हमें तो पूरी इसकी उम्मीद है और आपका हमारा ये साथ अल्लाह ताला ऐसे ही बरकरार रखेगा। इस पर हमें अपनी रब से जो है यही हमारी जो है उम्मीद भी है और यही हमारी दुआ भी है। तो ये हमारा जो साथ रहा है आपका, उस साथ की वजह से इतना तो बनता है कि आपको ईद की मुबारकबाद तो कम से कम दी जाए और ईद की उन खुशियों में जो आपने ईद गुजारी थी, उसमें अगरचे कि हम आपके साथ नहीं थे, फिज़िकल तौर पर, जिस्मानी तौर पर, लेकिन हम इतना यकीन रखते हैं कि हमारे भाइयों का हमारे साथ जो ताल्लुक़ है, हमारे सामईन और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने वालों का हमारे साथ जो गहरा ताल्लुक़ है, तो ज़रूर दिल के किसी न किसी गोशे में, किसी न किसी कोने में हमारी यादें ज़रूर ऐसे मौक़ों पर रहती हैं और ऐसा होता ही है। आप भी जो है हमारे साथ रहे हैं ईद के इस मौके पर और हम आपको याद करते रहे हैं। आपके दिलों में भी इसी तरह से ये खुशगवार यादें हमारी ज़रूर जो है रहती होंगी। बस ये है कि फ़िज़िकल तौर पर हम नहीं मिल सकते क्योंकि हम दूर-दूर रहते हैं, तो ईद के मौके पर मिलने का उतना इत्तेफ़ाक नहीं हो पाता है दूर रहने की वजह से, तो कोई मसला नहीं है और कोई बात भी नहीं है। अच्छा है कोई मुलाकात की एक शक्ल जो अभी है यही काफ़ी है और इससे भी बहुत हद तक जो है चीज़ें हो जाती हैं। हम ईद के बाद ये पहली मर्तबा मिले हैं। आज के इस दर्स के अंदर थोड़ी ये तमहीदी बातें मुझे ज़िक्र करनी थी आपसे और वो मैंने पेश कर दिया। आजकल के दुनिया के जो हालात हैं और हो सकता है कि आप लोग भी इन हालात का किसी न किसी जो है
किसी न किसी हैसियत से शिकार आप भी हुए होंगे। परेशानी का ये दौर हर एक के लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। और कुछ ऐसी परेशानियां हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के हों या गैस वगैरह मिलने से लेकर के हों, या गैस की किल्लत को लेकर के हों, कमी को लेकर के हों। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक मुल्क के हर जो है शहरी से होता है, यहाँ के हर सिटीजन से होता है। तो चूंकि हम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, तो हमारे साथ भी इसका मामला बहरहाल है। परेशानी थोड़ी बहुत जो है झेलनी पड़ती है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ मसला होता ही है। तो इन परेशानियों को अब झेलते हुए, और मुल्क के और दूसरी जगहों के जो हालात हैं इस वक्त, हमने जो तारीख पढ़ी है ना, तो तारीख पढ़ने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि तारीख का जो स्टूडेंट होता है ना, हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है, वो इन हालात को बड़ी आसानी से समझ लेता है कि क्या चीजें इसमें होंगी, अंदर क्या बातें होंगी। याद रखिए, इस तरह के जब हालात होते हैं तो आपके पास जो खबरें पहुंचती हैं, वो खबरें तो बिल्कुल, यानी कह लीजिए कि जितनी खबरें लोग पहुंचाना चाहते हैं उतनी ही खबरें पहुंचती हैं। ग्राउंड रियलिटी के ताल्लुक से बहुत सी चीजें हैं जो आप अंदाजे तो लगा सकते हैं, लेकिन वो खबरें आप तक नहीं पहुंचती हैं, या सही अंदाज से आपके पास नहीं पहुंच सकती। उस जमाने में भी होता था, तारीख के हवाले से ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको आप जहन में रखेंगे तो इसको भी समझने में आपको आसानी होगी। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम अपने आप को इसके पीछे लगाएं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आप कितना भी पीछे लगाएंगे, और जो खबरें आपको दस्तयाब होंगी, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे कोई अफराद के माध्यम से कि कोई आदमी आपका उन इलाकों में रहता हो, उससे फोन के जरिए से या और दूसरे वसाइल से आप बातचीत करके पूछें, तब भी कोई चीज आपके सामने क्लियर नहीं होती है। हालात हकीकत में क्या है, वो आपको उसका कोई अंदाजा नहीं होता है। तो इसीलिए अपना वक्त इसके पीछे लगाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा आपको नहीं होगा। इसीलिए हमारी एक नसीहत होती है लोगों से, हमने रमजान के महीने के दुरूस में भी काफी ये बातें रखी कि इनके पीछे पढ़ेंगे तो आपका वक्त बर्बाद होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आप चाहेंगे कि हकीकत क्या है उसका इल्म हो जाए, तो वो कभी नहीं हो सकता। हकीकत पर्दे के पीछे छुपी रहती है, और वहां तक पहुंचने के लिए लोग तज्जिए करते रहते हैं अपने अपने मुल्कों में बैठ करके, जिनको सियासी पंडित कहा जाता है। तो ये लोग अपने अपने अंदाजे पेश करते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका इल्म सही माने में किसी को भी नहीं होता है, क्योंकि ये खबरें छन कर आती हैं। छन कर आने का मतलब क्या होता है कि हर जगहों पर, हर मुल्क के अंदर ऐसी चीज रखी हुई होती है, ऐसा निजाम होता है कि वो उस मुल्क की खबरें दूसरी जगहों पर न पहुंचे, उसके लिए वो पूरे तरीके से पाबंदी लगा के रखते हैं। तो जो खबर भेजनी होती है और जितनी भेजनी होती है, उसी को मीडिया के जरिए से वहाँ के की हुकूमतें पहुंचाती हैं, और फिर वो पूरी दुनिया के अंदर उसको आम किया जाता है, फैलाया जाता है। इतना ही होता है। तो इन खबरों से आपको कोई बहुत ज्यादा सही इल्म तो आने वाला नहीं है, तो उनके पीछे क्यों लगेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, फलां कोई आलिम कह रहा है, भाई तो वो क्या, उनके ऊपर वही आती है, उनके ऊपर भी वही नहीं आती। तो चाहे इसमें कोई आलिम हो गैर आलिम हो, सब बराबर ही हैं, क्योंकि ये खबरें तो किसी को भी सही माने में नहीं पहुंचती हैं। और किसी मुल्क के लोग भी बयान करेंगे तो वो उसी हद तक बयान करने की उनको इजाजत होती है जो उस मुल्क के सियासी मफाद में बात होती है, जो उस मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक होती है। और उस मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ जो बात होगी, उसको वहां के लोगों को भी बयान करने की इजाजत नहीं रहती है। और लोग, वो चाहे कितना बड़ा भी आलिम क्यों ना हो, वो नहीं बयान कर सकता, क्योंकि मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ वो चीज होती है। तो ये एक मसला है, इसीलिए उन सब चीजों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जानी चाहिए।
हालात आगे क्या होंगे, कैसे रहेंगे, और अगर जंग बंद भी होती है तो उसके बाद के जो उसके नुकसानात हैं वो देर पा होते हैं ना, उसके नुकसानात बाद में भी झेलने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आगे चल करके एक परेशानी बहरहाल पैदा कर सकती हैं, और उसके अंदाजे भी हैं, और उसका हमसे ताल्लुक है। तो वो बातें हम नसीहत के तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं सर। तो ये एक बात है कि आप कोशिश करें कि जितना हो सके कम से कम खर्च करें। आज के हालात में आप अपने घर के बजट को लेकर के, अपने अखराजात को लेकर के आप उस पर नजर सानी करें। जो जरूरी खर्च है उसे करें, वो तो करना ही है, जिंदगी बसर करनी है, उसके मुताबिक आप खर्च करें। लेकिन अपनी सेविंग को पहले से ज्यादा करें। कुछ गैर जरूरी खर्च हो तो उससे परहेज करें, बचें, और कोशिश करें कि आपके पैसे कुछ न कुछ आपके पास महफूज रहें। क्योंकि आगे के हालात क्या हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, दुनिया में किसी को उसका इल्म नहीं होता। तो आने वाले वक्तों के लिए अपने आप को तैयार रखने की बात तो कुरान से भी, हदीस से भी, और इस्लामी शरीयत का जो मिजाज है उससे भी वो चीज समझ में आती है कि आपको कुछ सोच करके ही अपने कदम आगे उठाने होते हैं। तो ये हमारा हमसे ताल्लुक ही है इस चीज का, इसलिए हम ये पेश कर रहे हैं। हम जंग के बारे में नहीं आपसे कुछ कह रहे हैं, हम आपको जो नसीहत कर रहे हैं ना वो अपनी जिंदगी से मुताल्लिक कर रहे हैं कि हम थोड़ा अपनी जिंदगी को संभाल करके रखें, और अपने अखराजात को भी काफी हद तक कंट्रोल में रखें अपने, और कोशिश करें कि हमारी सेविंग थोड़ी ज्यादा रहे, हमारे पास कुछ पैसे रहें। आगे के हालात को कैसे होंगे उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, और थोड़ा बहुत जो अंदाजा है उसकी रोशनी में यही कहा जा सकता है कि बहुत आसान नहीं होंगे ये हालात, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि इस पूरी जंग में जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो नुकसान, ये भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ, कि वो नुकसान हमारे अपने भाइयों का ही हो रहा है। जिस जगह पर भी हो रहा है नुकसान, वो ज्यादा नुकसान ये हमारे अपने भाइयों का ही हो रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है कह लीजिए। यानी उस नुकसान से हम भी मुतासिर होंगे। ऐसा नहीं कि हम दूर रह रहे हैं तो हम मुतासिर नहीं होंगे, नहीं मेरे भाइयों, ये नुकसान हमारे उन भाइयों से भी ताल्लुक रखेगा जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, और हमारे इस मुल्क के बड़ी आबादी वहां पर काम करती है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर काम करते हैं, तो वो मुतासिर हो सकते हैं। वहाँ की जो हुकूमतें हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ चुका है अभी तक इस पूरे इसके अंदर, और आगे चल करके भी उनको मजीद परेशानियों का सामना है। उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका, वो पूरे तरीके से इससे मुतासिर हुआ है। उनकी तेल और इसी तरीके से जो गैस के उनके प्लांट थे, तेल की जो जगहें थी रिफाइनरी के लिए, जो उन सब को भी नुकसान पहुंचा है। और उसमें बाद ऐसे नुकसानात भी हैं जो महीनों जो है उसकी इस्लाह नहीं हो पाएगी, और उसमें काम चलता रहेगा, उसके बाद जो है दोबारा वो काम करने के लायक होंगे। तो काफी कुछ नुकसान उनको भी सहना पड़ा है, काफी परेशानियां उठानी पड़ी हैं उनको। और इन सब का ताल्लुक भी जाहिर सी बात है कि उनके अपने इक्तिसाद से भी, उनकी अपनी इकोनॉमिक से भी ये सब जुड़ा हुआ होगा। इसमें ये भी है कि गैस और तेल की तफ सप्लाई जो रुकी तो उसका भी उनको काफी नुकसान है, काफी जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया था, उनकी इनकम का ये बड़ा सोर्स है, इसके जरिए से उनके पैसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें बहरहाल हैं। एक ऐसे भी वहाँ मुल्क थे जो जिनकी कमाई का असल दारो मदार वो एक टूरिज्म का हब बना करके था। अब इन हालात में जाहिर सी बात है कि वहाँ आने जाने वाले लोग नहीं हैं,
वहाँ के एयरपोर्ट बंद हैं, तो उनकी कमाई भी पूरी तरीके से ठप है। तो इस तरह के हालात हैं, वहाँ बहुत से जो काम करने वाले हैं, उनकी भी चूँकि टूरिज़्म चल रहा था, तो उस उन्हीं से उनकी आमदनी जुड़ी हुई थी। तो बहुत से काम करने वाले, उनके काम भी सब मुतासिर हुए हैं इसकी वजह से। तो ये सब परेशानियाँ हो चुकी हैं, आगे भी कितने दिनों तक ये परेशानियाँ रहेंगी, हालात कैसे रहेंगे? हम दुआएँ तो कर सकते हैं यहाँ से, और कुछ तो नहीं हो सकता हमसे। लेकिन अपने तौर पर हमें अपने बारे में सोचने के लिए मैं ये नसीहत कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि जहाँ तक जो है गैस है, पेट्रोल वगैरह है, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, कम से कम खर्च करें। जितना ज़रूरी है उसी हद तक। पहले से भी हम उसी तरह से खर्च करते रहे होंगे, लेकिन अब इन हालात में और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि जितना हो सके एहतियात बरतें और अपने पैसे बचा कर रखने की कोशिश करें, जो हमारे भी काम आ सकते हैं। बाद में अगर हमारा कोई भाई भी परेशान हाल है, तो उसकी मदद करने के भी काम आ सकते हैं। पैसे रहेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये बातें थी जो आपके सामने हमने पेश की हैं, और वो भी आज हमारा तारीख का बाकायदा वो दर्स तो नहीं रहा, लेकिन तारीख से ही जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो हम कहते रहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है। और तारीख का एक स्टूडेंट होने के लिहाज से हमको इन जंगों में भी बहुत हद तक अंदाजा होता रहता है कि क्या होगा, क्या हुआ होगा, और आगे चल कर के किस तरह की परेशानियों का सामना हो सकता है, क्योंकि पहले तारीख में ये चीजें हो चुकी हैं। हमारे एक भाई से बात हो रही थी इसी टॉपिक पर, और वो वहीं मतलब इस फिलहाल काम यही, रहने वाले तो इसी मुल्क के हैं, हमारे इस मुल्क के, लेकिन वो अपने काम के सिलसिले में वहीं बाहर रहते हैं। तो ये बात समझ में आई, मैं तो पहले से भी मुझे ये अंदाजा था भी, वो बात मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि ऐसे मौके पर कभी ये भी होता है कि किस तरह से जंग को भड़काया जाए। तो कभी हमला किसी मुल्क पर, किसी मुल्क की किसी चीज पर हमला करने वाला कोई और होता है, और समझते हैं कि हमला किसी और ने किया है, और उसका मकसद सिर्फ क्या होता है कि ये भी जंग के अंदर कूद पड़े। जैसे एक मिसाल मैं दे दूं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, कि मिसाल के तौर पर कतर की किसी एक खास जो है, जो गैस से मुताल्लिक, चूंकि उनके यहाँ गैस काफी होता है, तो काफी दुनिया में सप्लाई करते हैं वो गैस, तो उससे मुताल्लिक जो चीजें हैं उस पर हमला, वो हमला कर दिया गया। भाई हमला किया किसने? अब ये होगा कि चूंकि जंग चल रही है, तो उसमें अब एक मुल्क होगा, उसके बारे में ख्याल जो हो जाएगा कि भाई इसी ने हमला किया। लेकिन एक पहलू इसमें यह भी होता है कि जिनकी तरफ आपका दिमाग न जाए, असल में हमला उन्होंने ही किया, और मकसद क्या है कि इनको भी एक मुल्क के खिलाफ भड़का दिया जाए, ये भी जंग के अंदर कूद पड़े। तो इस तरह से काफी कोशिशें की गई हैं गल्फ कंट्रीज को लेकर के कि इनको भी जंग के अंदर शामिल करने के लिए मजबूर किया जाए, भड़का दिया जाए इनको भी। लेकिन बहरहाल अब तक तो जैसा कि मैं जानता हूँ, अब तक जितना मेरे पास इल्म है, उन्होंने काफी सब्र से काम लिया है, और इस तरह की कोई चीज उनकी तरफ से नहीं हुई कि जंग के अंदर वो भी अंधे बहरे बन करके कूद पड़े। उन्होंने ऐसा कुछ अभी तक तो इस तरह की कोई चीज उनकी तरफ से हुई नहीं है। मुझे याद पड़ता है जंग सिफीन का वो मामला। हम तारीख की बात करते हैं, तारीख में ये पहले चीजें इस तरह की हुई हुई होती है। जो जंग सिफीन के मौके पर जो बड़े मुहक्किकीन हैं, तारीख
जिन्होंने बड़ी जो है तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद लिखा है, उन्होंने ये बात जिक्र की है कि जंग सिफीन को भड़काने में असल में उन बलवाइयों का हाथ था जो रात के हिस्से में कुछ लोग अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो के खेमे की तरफ जा करके वहां से अली रदी अल्लाह तआला अन्हो के खेमे पर कुछ तीर बरसाए, और उन्हीं में से कुछ लोग अली रदी अल्लाह तआला अन्हो के खेमे की तरफ से मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो के खेमे पर तीर बरसाए। और दोनों में से हर एक ने ये समझा, अली रदी अल्लाह तआला अन्हो ने ये समझा कि मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो की फौज ने हमला कर दिया, और मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो ने ये समझा कि अली रदी अल्लाह तआला अन्हो की फौज ने हमला कर दिया। और इस तरीके से जंग जो है भड़का दी गई। हालांकि जंग से बचने की दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंग को भड़का दिया गया था। और जब जंगें भड़कती हैं तो याद रखिए ये एक ऐसा फितना होता है जो अपने आप दूसरी तब और भी बहुत सी चीजों को जला करके भस्म करके रख देती हैं। तो ये जंग का जो शोले होते हैं ना, जब भड़कते हैं तो ये बहुत जल्दी बुझते भी नहीं हैं और बहुत नुकसानात करके जाते हैं। और बाद में नुकसानात के बारे में सोचते हैं तो मालूम होता है कि भाई ये बेला वजह इस तरह की चीजें इतनी हो गई है और इतना मामला हो गया है। बहरहाल, तो वहां पर भी बाकायदा जंग भड़काई गई थी, और जंग भड़का करके तो मुस्लिम मुल्कों को, या कहीं उस जमाने के लिहाज से कह लीजिए कि ये दो मुस्लिम जमातें थी, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दिया गया था और जंग बाकायदा हुई। हालांकि तीसरी जमात थी ये, जिन्होंने दोनों तरफ से हमला करने के लिए पहल किया, ताकि दोनों में से हर एक ये समझे कि पहले हमला हमारी दुश्मन फौज ने किया है, और दोनों में से हर एक ये समझ जाए कि सामने वाली फौज हमारी दुश्मन है, वो हमारे भाई नहीं है। तो ये एक बात मुझे याद आती थी जब मैं इस तरह की चीजों के बारे में सुनता था या कहीं पढ़ लेता था। ऐसे भी जो है मुझे तारीख के एक स्टूडेंट की हैसियत से मुझे याद पड़ा, जब बनु बुएह का, अभी जो तारीख हम पढ़ रहे हैं अब्बासी पीरियड में, बनु बुएह का जब बड़ा कब्जा था और किस तरीके से ये शियों का बोलबाला हुआ उस जमाने में, और शियों की तरफ से जो शक्ल होती है, जो अहले सुन्नत के खिलाफ जो उनके हमले होते थे उस जमाने में, कि अहले सुन्नत वल जमात हालांकि वो बड़ी जमात थी और शियों की छोटी जमात थी, लेकिन वो छोटी जमात भी एक बड़ी जमात को ऐसा परेशान करके रख दी थी, क्योंकि बनु बुएह के पास कुव्वत थी, ताकत थी उस वक्त, और वो शियों की हिमायत में थे, और उन्होंने ही इस तरह की चीजें भड़काई थी ताकि लोग आपस में लड़ते रहे। तो बनु बुएह का मसला, जो अपने आप में वो हुकूमत पर काबिज थे और हुकूमत चला रहे थे वो लोग, उनका वो मामला हमेशा हल रहे और उनकी वो दादागिरी कायम रहे। अगर मैं और आसान लफ्जों में कहूं तो उसके लिए शिया सुन्नी फसादात उस जमाने में भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और शायद दोनों में से किसी की भी उसमें मसलहत न रही हो, क्योंकि दोनों के नुकसानात हमेशा होते रहे, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फायदा उठाने वाली हमेशा एक तीसरी ताकत होती थी जो इन फसादात से फायदा उठाती रही। तो तारीख में ये चीजें पहले गुजर चुकी हैं, हो चुकी हैं। तारीख अपने आप को दोहराती है। तो हालात कुछ इसी तरह के हैं आज के जो है। तो ये एक मशवरे की बात थी, आपसे जो है बात हमने रखी कि आप इन सब चीजों की तरफ कोई तवज्जो न दें, और इसके बारे में कभी न सोचें कि फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। अरे किसने क्या किया वो हमें कुछ पता तो नहीं है, हम सही खबर तो जानते भी नहीं हैं, क्योंकि सही खबरें हमारे पास आती भी नहीं हैं। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो अपने भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि हम हमारे साथ जो परेशानियां हो सकती हैं, जो मुतवक्के हैं,
जंग के इस नतीजे में, तो उसको अपनी परेशानियों को कम करने के लिए अभी से हम अपनी जिंदगी से मुताल्लिक सोचें और अपने अखराजात से मुताल्लिक सोचें। ये हमारे लिए बेहतर बात होगी। और मैंने जैसा मशवरा दिया आपको कि बहुत ही किफ़ायत शेयारी के साथ आप ज़िंदगी बसर कीजिए। जितना ज़रूरी है अखराजात को उसी हद तक समेटिए। बकिया और चीज़ें होंगी तो इंशाअल्लाह जब हालात अच्छे रहेंगे तो दूसरी चीज़ें भी बाद में हो जाएंगी। जब आपके पास पैसे रहेंगे तो पैसे आपके काम आएंगे, बाद में आपको कोई परेशानी इंशाअल्लाह नहीं होगी। तो ये चंद बातें थीं जो नसीहत की थीं और आज के इस तमहीदी दर्स से मुताल्लिक थीं, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। मैंने कहा ना कि ये जो है अभी अपना मूड बनाने के लिए आज आप सब लोगों के इल्म के लिए कि दर्स शुरू हो चुका है और फिर से इंशाअल्लाह हम लोग अपने इस इल्मी सफ़र पर फिर से हम लोग गामज़न रहेंगे, अपने इल्मी सफ़र को जारी रखेंगे और आइंदा हफ्ते से हमारा हिस्ट्री का ये दर्स, ये सबक इंशाअल्लाह अपनी आगे की मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। और आज की ये बात हिस्ट्री के इस दर्स से मुताल्लिक मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।